Hello students, continuing with chapter 7, exercise 7.4. We had studied a certain kind of questions, how we were using the formulas, where in the numerator we were not having anything, और अगर कुछ था भी तो by letting the denominator as t, we were able to get rid of functions of x in the numerator. But now in example 10 part 2 on page 313, there are certain kind of questions in the exercise also which are of the form कि जहां पर if you let also you won't be getting rid of the numerator or function of x in the numerator. So whether there is a under root here or no under root, if you let this as t, you will get minus 4 minus 2x, which is definitely not equal to this. So for these kind of questions, we have to use a particular method. Let me tell you what that method is. What we will do now, we will let always numerator is equals to a into differentiation of denominator plus b. Here a and b are constants. इनकी वैल्यूज अगर अपन कैलकुलेट कर पाए तो डेफिनेटली वी विल बी एबल टू solve these kind of questions very easily. Now what we will do over here is, this is the general method which you have to use. Okay, now what we will do, we will let here also let x plus 3 is equals to a into differentiation of 5 minus 4x minus x square. Please remember, स्क्वायर रूट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्क्वायर रूट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, आपको फंक्शन लेना है, रूट नहीं लेना है. a इंटू माइनस 4 माइनस 2x प्लस b. So what you get here as x plus 3 is equals to minus 2ax plus b minus 4a. So since these two sides are equal, it is only possible when you compare them, and what you get, x को x के कोफिशिएंट से कंपेयर करते हैं, कांस्टेंट को कांस्टेंट से कंपेयर करते हैं. सो कंपेयर किया तो 1 इज इक्वल्स टू माइनस 2a आ गया, है ना भैया. एंड कांस्टेंट को कंपेयर किया तो 3 इज इक्वल्स टू b minus 4a. Is that clear to you? Constant इसका कोफिशिएंट है 1, 1 is equals to minus 2a and 3 is equals to b minus 4a होगा. करेक्ट. यहाँ से a की वैल्यू आ गई minus 1/2. So if we are putting it in a box kind of thing, it makes easier for the examiner as well as for you to locate. और यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए a की, which is minus 1/2. So the value of b will be, if I am not wrong, it will be 1. ये 2 बनेगा प्लस का उधर जाके 1. करेक्ट. डन. नाउ व्हाट वी विल डू, a और b की वैल्यू डायरेक्टली यहां पर इसको लिखेंगे क्वेश्चन को, और न्यूमरेटर की जगह ये वाला सेकंड, दिस पार्ट हैज टू बी रिटन. प्लीज रिमेंबर दिस. Therefore x plus 3 upon root of 5 minus 4x minus x square dx is equal to a into differentiation of this. So that means minus 1/2 into minus 4 minus 2x. ये कहां से आ रहा है, डबल स्टार जो मैंने लगा रखा है वहां से आ रहा है. ठीक है, ये दिख रहा है ना आपको डबल स्टार, यहां से ये आ रहा है. ध्यान रखना, ऑलवेज यू हैव टू डू दिस वन ओनली. डिफरेंशिएशन के बाद जो फंक्शन बनता है, डिफरेंशिएशन के बाद जो फंक्शन बनता है उसी में ही a और b की वैल्यू पुट करेंगे. एंड द वैल्यू ऑफ b इज 1 प्लस 1 होल अपॉन अंडर रूट 5 minus 4x minus x square dx. Correct. Now what we will do, we will separate them.
Done. So what we have done, minus 1 by 2 बाहर, minus 4 minus 2x dx upon root 5 minus 4x minus x square plus 1 है तो खाली dx under root 5 minus 4x minus x square. Let it, this one is equation 1. इसको हम I1 कहते हैं, इसको हम I2 कहते हैं. ठीक है. So let us first solve I1, which is minus 1 by 2 integral of minus 4 minus 2x dx अपॉन में है अंडर रूट 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर. यहाँ पे लेट कर देते हैं 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर को t. सो माइनस 4 माइनस 2x इज इक्वल्स टू dt बाय dx. करेक्ट. तो ये हो गया माइनस 1 अपॉन 2 इंटीग्रल, न्यूमरेटर तो हो गया dt अपॉन अंडर रूट टी, मतलब ये बन गया माइनस 1 बाई 2 टी की पावर माइनस 1 बाई 2 dt. डन. सॉल्व कर देते हैं. ये हो गया जी माइनस 1 बाई 2 टी की पावर 1 बाई 2 अपॉन 1 बाई 2. आई हैव डायरेक्टली रिटर्न द फॉर्मूला भाई. टी की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. करेक्ट. ये माइनस 1 बाई 2 से माइनस 1 बाई 2 कट गया, ये आ गया माइनस अंडर रूट टी प्लस c1. सो I1 की वैल्यू हो गई माइनस अंडर रूट 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c1. नाउ लेट अस टेक I2. व्हाट इज I2? I2 है, हमेशा से ये ध्यान रखना I1 में टी लेट करने पर ऐसा कुछ हो जाएगा और I2 में आपको कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर लगाना पड़ेगा. करेक्ट. सो जो कल काम किया था उसी की एक्सटेंडेड फॉर्म है ये, और कुछ नहीं है. ठीक है. सो लेट मी सॉल्व दिस अगेन फॉर यू. रूट 5 माइनस कॉमन लिया तो करेक्ट. होल स्क्वायर बनाने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, फाइव माइनस, अपन ने इसको लिख दिया x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4. आप चेक कर सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 4 ऐड किया तो हमने 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया. नाउ दिस 4 के आगे वी हैव अ माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो इट बिकम्स dx अपॉन रूट 9 माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर. करेक्ट है. ये हो गया dx अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर. सो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन गए. ठीक है ना. और ये क्या होता है, so value of I2 will be sin inverse x upon a, है कि नहीं, प्लस C2. put values of I1 and I2 in first. सो हमारा पूरा क्वेश्चन इंटीग्रल ऑफ x प्लस 3 dx अपॉन अंडर रूट 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू, वैल्यू ऑफ I1 क्या था, माइनस 5, माइनस में है अंडर रूट 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस साइन इनवर्स
x plus 2 upon 3, ठीक है ना, प्लस हमने c लिख दिया, where c is equals to c1 plus c2, constant है भैया. This is how we have to solve the next question, 10 questions of the exercise. So exercise 7.4, question number 16 to 25. This is your homework which you have to solve. Send your queries so that I can solve your problems and send you the video. Correct? So please solve these questions. I have given them as homework. Do these questions carefully because ऐसे ही question boards में पूछे जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना. So again, stay home, stay safe, enjoy integration. Thank you.